Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher in front of you for today a new topic, that is what natural gas, as well as we will discuss about the keywords and exercise. So let's quickly start without wasting the time. The first topic that is here, natural gas. So what is natural gas? So आप सभी को पता है कि that natural gas is a fossil fuel. Natural gas is a fossil fuel and found naturally. Natural gas is a fossil fuel and found naturally and mixture of hydrocarbons. So natural gas क्या है? Natural gas is a fossil fuel and found naturally in the form of mixture of hydrocarbon, and this is found in oil wells. यानी ये तेल के कुओं में मिलने वाली गैसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल गैस. व्हाट इज द कंपोनेंट? सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. मेन कंपोनेंट ऑफ natural gas is methane, but some amount of helium, nitrogen and carbon dioxide are also present. अगर हम बेटा देखें इनका जो मेन कंपोजिशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट मेन कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. यानी मीथेन जो होती है मेन कंपोजिशन होती है, इसके साथ साथ हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट व्हाई natural gas is important fossil fuel. यानी आपका अगला क्वेश्चन उठता है कि जो नेचुरल गैस है ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. वाई नेचुरल गैस इज an important fossil fuel. Now we have to discuss about this. So why this is so important? Because it can be transported easily through pipelines. इनको हम आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. दे कैन बी स्टोर्ड एज CNG, दैट इज व्हाट compressed natural gas. It can be stored at CNG, that is compressed natural gas, or LPG, that is what we can say that liquefied petroleum gas, या हम लिख सकते हैं liquid petroleum gas. दोनों लिख सकते हैं आप, liquefied petroleum gas, or you can also write liquid petroleum gas. Natural gas do not cause air pollution because of
high because of high calorific value। यानी अगर आप कंसीडर करें नेचुरल गैस को तो ये बेटा कोई भी पोल्यूशन नहीं करती है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इट ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इन इंडिया natural gas is found in Maharashtra, Rajasthan and Tripura मेनली यहाँ पे हमने बेटा 3 स्टेट्स के नाम लिए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड त्रिपुरा। हियर मेजर अमाउंट ऑफ नेचुरल गैसेज आर प्रेजेंट। ओके देन स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल गैस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल। ओके, दिस इज फाउंड नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से मिलती है। एंड दिस इज द व्हाट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड इन ऑयल वेल्स। कहाँ? जो तेल के कुएं होते हैं उसमें मिलती है। मेन कंपोनेंट इज हियर मेथेन, बट सम अमाउंट ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो प्रेजेंट। Next, why natural gas is important fossil fuel? Because it can be easily transported from one place to another place. It can be stored as a compressed natural gas, that is CNG, as well as liquefied or liquid petroleum gas, that is LPG, and it can be also easily transported as we discussed earlier. It has high calorific value, hence do not release any kind of pollutants, and after burning there is no residue, यानी जलने के बाद कुछ अवशेष नहीं बचता है, यानी कंप्लीट बर्निंग हो जाती है या कंप्लीट कंबशन हो जाता है। इसके साथ साथ इन इंडिया नेचुरल गैस इज मेजरली फाउंड इन महाराष्ट्र, राजस्थान एज वेल एज त्रिपुरा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल गैस। अब हम देखेंगे व्हाई वी शुड कंजर्व fossil fuel or natural resources, those are exhaustible. Okay, next topic is why we should conserve fossil fuel। हमें fossil fuel को कंजर्व क्यों करना है? आप सभी को पता है, बिकॉज दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स दैट प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट and takes a long time to be recycled. That's why a day can come when all these natural resources will be completely consumed. इस वजह से इनको हम इकोनॉमिकली यूज करेंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे as we know that coal, petroleum and natural gases are exhaustible natural resources means that can be completely used up। ठीक है, पहला कारण क्या है? इनको कंप्लीटली यूज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। सेकेंड, टेक्स million of years to be formed। इनको बनने में बेटा क्या लगते हैं? मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इस वजह से लगातार आप यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा। सो वी शुड यूज दीज प्रोडक्ट इकोनॉमिकली। इनको कैसे आप यूज करेंगे? इकोनॉमिकली, नॉट
ब्लाइंडली, यानी इनको किस तरह से आप यूज़ करेंगे, इकोनॉमिकली, ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली इसको यूज़ करते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक ऐसा समय आ रहा है कि ये बेचारे ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है नेचर में और इनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बनने के लिए। सो व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व और टू सेव दीज नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी डन। तो यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं, हाउ, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ we can prevent or conserve natural resources और फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल को आप कैसे बचा सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, हाउ वी कैन प्रिवेंट और कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। Let's quickly discuss some points. First, we should use public transport. We should use public transport instead of own vehicle, यानी खुद का साधन ना यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। Second point is here that we should turn off the engine. We should turn off the engine at, or we can say that traffic light or crowded place, यानी ट्रैफिक लाइट पे अगर आप रुक रहे हैं तो जो इंजन है उसको आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी जो भी आपके संसाधन हैं उनको आप क्या करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू, यूज bicycle or do not prefer vehicle for short distance। अगर आपको बहुत कम दूरी जाना है तो आप साइकिल उठाइए या पैदल ही चले जाइए। By means of these techniques we can just conserve or we can just reduce the use of fossil fuels. So this was all about how we can prevent or how we can consume the natural resources or fossil fuels. Okay then students, next topic is consequences of burning of fossil fuel, यानी fossil fuel के burn करने से क्या नुकसान होता है। So the first one is global warming and we can consider second point air pollution, यानी एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ये दो मेन कंसिक्वेंसेस हैं किसके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के। कैसे, एज यू नो दैट एयर पोल्यूशन, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ fossil fuel, and second is complete burning of fossil fuel. So in air pollution, the cause of air pollution is incomplete and complete burning of fossil fuel. अगर incomplete burning होती बेटा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर complete burning हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. So both these, carbon monoxide, carbon dioxide as well as what, sulfur dioxide, cause air pollution. ये दोनों क्या कराते हैं, तीनों एयर पोल्यूशन कराते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? सो दिस इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द अर्थ temperature, increase in the earth temperature
globally, increase in the earth temperature globally due to carbon dioxide, because carbon dioxide traps the heat. तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? जब कंप्लीट बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की। तो ये तो बेटा क्या है, कंसिक्वेंसेस हैं किसके? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के। लास्ट में हम देख लेते हैं यूज ऑफ नेचुरल गैसेस, इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट, ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन USA। सबसे पहले जो ऑयल वेल ड्रिल किया गया था वो कहाँ किया गया था? USA में इन 1859। ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन आसाम, यानी हमारे इंडिया में था सबसे पहले 1865 के आसपास, 1867। इन इंडिया ऑयल wells are in, we can say that, Assam as well as in Mumbai, as well as in the case of Gujarat। ठीक है, तो बेसिन ऑफ रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बेसिन्स हैं वहाँ पे भी ऑयल वेल्स की अवेलेबिलिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑयल वेल्स। इन द लास्ट लेट्स डिस्कस सम कीवर्ड्स। तो बेटा आपके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं कोल गैस, कोक। तो कौन कौन से? कोल गैस, कोक, फॉसिल फ्यूल, एंड लास्ट है पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और रिफाइनरी। सो ये आप सभी जानते हैं क्या है? कोल इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हार्ड ब्लैक कलर फॉसिल फ्यूल। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। What is coal? This is mixture of carbon, hydrogen, nitrogen and hard black color fossil fuels forms due to dead remains of plants। कैसे बनता है? Form due to dead remains of plants। ये plants के dead remains से बनता है। What is coal gas? ये कहाँ मिलती है? This is obtained during processing of coal to form coke। यानी कोल से जब हम कोक बना रहे होते हैं तो उसी समय हमको क्या प्राप्त होती है? कोल गैस, जो कि वेरियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर भी है। हमने आपको बताया था कोक क्या होता है। दिस इज व्हाट सॉलिड एज वेल एज पोरस प्रोडक्ट ऑफ कोल। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फॉर्म ड्यू टू डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस impurities from the petroleum। I think now you will able to understand. You have to do your exercise yourself. If there will be any problem, you will immediately ask to me without any hesitation. So this was all about for today. Thank you for watching the video and have a nice day. Keep smiling.